Hello everyone, welcome back to the Unacademy platform and I hope everybody is doing good. So today we are here to discuss a very important topic on complex analysis. So as your exam is coming very soon, so let's hope that we can complete a few of the topics which are very important for the exam. So here is an information for all of you that we have an offer running right now and this is valid till 30th of April and in this offer we are actually offering you 25% off on all IIT JAM subscriptions. So this offer is valid till 30th of April. Make sure that you make best use of this offer. So for this you can use my code ALKA99 and you can just start preparing for your exam. And why I'm telling you is this because we have a batch course which is starting from 28th of April, and since this batch course is starting from 28th of April, it means tomorrow, so it's better to make the best use of this offer. Take subscription using my code and start preparing because I'm the one who's starting with this batch course. I'm starting linear algebra for everyone starting at 9:30 p.m. to hope to see everyone tomorrow at 9:30 p.m. So use this offer and start preparing. Either you are 2024 aspirant or 2025, this is the best time to start preparing for the exam. All right, so today we are going to start with our topic, which is complex integration, and we will try to understand complex integration with a few questions. I will tell you that in exam if you come across such kind of questions which are basically complex integration and line integral, I will tell you how to solve them with the help of few examples. And in case anyone faces any problem in any one of the questions, or if you have any question, then you can just put it in the comment section. I will try to solve your problem in the next session if you have any other question. And otherwise, if you have any problem in the questions which I will be solving in the class, you can also let me know in the comment section. All right, so let's get started. So the question number one that we have to solve is this. We have to calculate what? We have to calculate from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I, and the function that we have to integrate is x minus y plus ix square dz. But we have to integrate this function from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I along a straight line. All right, and what is that, a straight line? Along the straight line from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I. Always remember one thing, whenever you are dealing with the complex integration, basically with the line integrals, you have to very much focus upon the domain which is given to you, or I should say the curve that is being given to you, because the value of the integral changes as the curve changes. All right, as the line in which you are integrating, it is changing. So make sure that you are focusing upon your curve very much. All right, so let's solve this question. We have another part also for this one, like this is the part A. We will be solving part B also, but for the time being we are focusing upon the part A. All right, so what we will do, we will be drawing the domain and we will see what is the curve that is being given to us when we need to integrate from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I. So as we have already discussed in our plus classes about the Argand plane, that is for representing the complex numbers. So they are saying that we have to integrate this along a straight line from z is equals to 0. We know that this is z is equals to 0 and z is equals to 1 plus I. It means here we have z is equals to x plus iy. It means x is equals to 1 and y is equals to 1. So if we consider x is equals to 1 here and y is equals to 1 here, then this is our z is equals to 1 plus I point, and we have to integrate along this straight line. All right, this is the curve from z is equals to 0, from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I. This is the straight line. So we have to integrate this function x minus y plus ix square along this straight line. So आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना
कि जब भी कभी हमें क्या करना होता है, ऐसे लाइन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी आपको कर्व्स गिवन है उनमें आप उन कर्व के बीच में एक इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, यानी कि ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व और इक्वेशन ऑफ द जो भी हमें डोमेन दिया हुआ है, उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. इन शॉर्ट, ट्राई टू गेट अ रिलेशन इन बिटवीन एक्स और y और try to find out the equation in terms of x or y. ठीक है, so we will see this. Now you see that here you have x is equals to 1 and y is equals to 1, so it means x is equals to y. Here you have z is equals to 0 where your x is also 0, y is equals to 0, so it means this z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I is always containing the complex numbers where y is equals to x. Right, we got this relation, that is y is equals to x. so हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको बोला x और y में कोई रिलेशन निकाल लो, या इन टर्म्स ऑफ x कुछ लिख लो आप, या y के टर्म्स में लिख लो, तो बहुत आसान हो जाएगा. सो हियर वी आर गेटिंग x is equals to y. okay, now you know that z is equals to x plus iy is a complex number. so here you will get z is equals to what, x plus ix, and now if you are going to do dz, it is going to be 1 plus I times dx. अब आपको ये सब इंफॉर्मेशन जो है इसको इस गिवन इंटीग्रल में जाके सब्सटीट्यूट कर देनी है. वंस यू विल डू इट, यू आर डन. तो आपको क्या दिया था, फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, एंड देन यू हैव x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर एंड यू हैव dz. राइट, दिस इज. अब आपको क्या पता है, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि x हमारा y के बराबर है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास x की लिमिट भी आ रही. मैंने जैसे हर एक चीज़ x में कन्वर्ट करी, आप हर एक चीज़ को y में कन्वर्ट कर लो. तो जो लिमिट बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी x है, देन प्लस आई टाइम्स एक्स स्क्वायर, dz हमने अभी देखा कि 1 प्लस आई टाइम्स डी एक्स आया है. अब जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट. व्हाट इट विल बिकम, दिस गॉट कैंसल्ड आउट, तो 1 प्लस आई एंड दिस इज आई. और अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे चेक करो ज़रा, दिस इज एक्स स्क्वायर, वील इंटीग्रेट इट, वी आर गेटिंग एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, आई प्लस का आई स्क्वायर मिला हमें, एंड देन दिस इज 1/3, तो वी आर गेटिंग आई माइनस 1/3, दिस इज द आंसर. ऑल राइट, बिकॉज इन द डोमेन वी कैन सी दैट दिस वॉज आर लाइन. तो हमारे पास x जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ऑब्वियसली x फ्रॉम 0 टू 1 है, क्योंकि ये z इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे आप देखोगे दिस इज z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई लाइन है, तो x का वेरिएशन जो है वो 0 से 1 आया है. ठीक है, so for the A part, the answer that we all are getting is this. All right, so let's go to part B and see वहाँ पे क्या पूछा गया है. ठीक है, all right, so let's go to our part B, which is on the slide. You can see that again we have to integrate the same function x minus y plus ix square from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I, but this time we have to integrate it in a different way. How? It is being written in the question. They are saying that we have to integrate this along a real axis from z is equals to 0 to z is equals to 1, and then along a line parallel to imaginary axis from z is equals to 0 to z is equals to 1 plus I. ठीक है, हम देख सकते हैं शुरुआत z is equals to 0 पॉइंट से ही हो रही है, और जो एंड है वो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पे ही हो रहा है, बट जो रास्ता है इंटीग्रेट करने का वो बदल गया है. ठीक है, कैसे, ज़रा इसको हम यहाँ पे समझते हैं. तो सबसे पहले बोला है अलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 1. सपोज दिस इज योर z इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज योर z इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने इस वाले पाथ को फॉलो किया है फ्रॉम z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पे पहुंचने के लिए. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, बोला है अब आपको इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल जाना है. दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, इसके पैरेलल जाना है फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई.
ओके यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा, दिस इज नॉट z इज इक्वल्स टू 0, दिस इज फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 1, है ना। z इज इक्वल्स टू 1 से z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पे आए हम, दिस इज योर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। अब यानी कि ये हमारे पास रास्ता बना है। अगर मैं कह दूं कि फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 1 i1 पाथ है, एंड फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 1 टू 1 प्लस आई i2 पाथ है, तो i1 और i2 को मिला के हम z इज इक्वल्स टू 0 से 1 प्लस आई पे पहुंच रहे हैं। तो जैसे कि अभी 2 साल पहले वेक्टर कैलकुलस का हमारे पास कोर्स था IIT जैम के सिलेबस में, तो वहाँ पे भी लाइन इंटीग्रेशन का टॉपिक था, एंड देयर ऑल्सो आई यूज टू टीच। एंड बाकी लोग जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी लाइन इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा, VC है ही। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लाइन इंटीग्रेशन होता है वो डिवाइड हो जाता है, हम अलग अलग कर्व पे निकाल के वैल्यू को ऐड कर दें तो भी हमारे पास सेम आंसर आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम z इज इक्वल्स टू 0 से 1 प्लस आई, और ये जो हमें x माइनस का y प्लस आई एक्स स्क्वायर dz निकालना है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, i1 कर्व पे निकाले हम x माइनस का y प्लस आई एक्स स्क्वायर dz, एंड फिर हम इसको i2 कर्व पे निकाल दें x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz, तो भी बात सेम ही होगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू इवेल्युएट इट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड देन वील ऐड इट। अगर मैं i1 कर्व की बात करूं, आप अगर ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ए पार्ट में क्या बताया कि ऑलवेज ट्राई टू गेट अ रिलेशन इन बिटवीन x एंड y, या फिर x और y की ही कोई इक्वेशन लिख लो। अगर आप i1 कर्व को देखोगे तो वो एक रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है मतलब उसमें कोई भी आप z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई पॉइंट लोगे, वहाँ पे y हमेशा 0 रहेगा, राइट। इतनी बात तो सबको ही समझ आती होगी, रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है ना, तो हमारा dy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो आप z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिख रहे थे, वहाँ पे जब dz निकालने जाओगे तो वो सिर्फ dx आएगा, क्यों, क्योंकि dy तो 0 हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये i1 पे जब आप निकाल रहे हो क्या वैल्यू, ठीक है, दिस i1 पे आपने ये जो अपना f dz निकालना है, तो i1 में वेरिएशन, अब देखो y तो हमने पूरा 0 कर दिया, तो x का वेरिएशन दिख रहा है ना, कहाँ से जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं हम, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो x माइनस वाई की वैल्यू 0 हो गई, प्लस आई एक्स स्क्वायर dz आपका क्या हो गया, सिर्फ dx हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का आई एक्स क्यूब बाई 3, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू 1। सो व्हाट इट बिकेम, सिंपली इट बिकेम 1 बाई 2 प्लस आई बाई 3। ये आया हमारा i1 वाले पार्ट का आंसर, ठीक। इन अ सिमिलर वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर i2। अब i2 के लिए कोई रिलेशन पता कर पा रहे हो x और y में, देखो i2 जो है बेसिकली वो एक कर्व है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू अगर y एक्सिस है तो उसमें x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, और वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। देखो अगर मैं इस i2 कर्व की इक्वेशन निकालूं तो वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, मतलब dx क्या आएगा, 0। तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई जो होता है आपका, उसमें dz की वैल्यू आई डी वाई आ जाएगी, बिकॉज dx इज 0। अब ये जो i2 पे हम f dz निकाल रहे थे, ये क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ y 0 है, और यहाँ देखोगे अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई में, तो y की वैल्यू क्या है, 1 हो गई, तो y फ्रॉम 0 टू 1, बिकॉज अब हम सब कुछ y में डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 1 हो गई, ये लिख दिया, प्लस का आई एक्स स्क्वायर, एक्स अगेन 1 हो गया, एंड यहाँ पे dz था, तो dz क्या आया आपका, आई डी वाई, राइट। अब आपको बस इसे इंटीग्रेट करना है, तो 1 प्लस आई टाइम्स आई, और y आएगा कांस्टेंट का, जब आप करोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, माइनस का i टाइम्स y का y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा फ्रॉम 0 टू 1। ये क्या बनेगा, देखो दिस इज i, दिस इज प्लस आई स्क्वायर, एंड दिस इज योर i बाई 2। तो i माइनस आई बाई 2 इज i बाई 2, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ गया। अब फाइनली आंसर के लिए आपको क्या करना था, i1 कर्व पे जो आंसर आया है और i2 पे आया है, दोनों को ऐड कर दो, तो 1 बाई 2 प्लस आई बाई 3 एंड प्लस का आई बाई 2 -1, तो you can see you are getting 5i by 6 and minus का 1 by 2. This is the answer that we will get for this line integration, ठीक है, जिसको हम complex integration कह रहे हैं. So this was very simple.
सो दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि ऑलवेज ट्राई टू गेट अ रिलेशन इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन एक्स एंड वाई, या फिर आप एक्स की कोई इक्वेशन लिख लो और वाई की लिख लो. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बस इतना ही करना है, वी आर डन. होप ये बात सबको समझ आ गई है. ठीक है. So let's go to another question which is also a very interesting question. Let's see what is that. So this time we have to integrate over the curve C z bar dz. I hope आपको z bar का मतलब पता है. z bar is basically the conjugate of complex number z. ठीक है. And ये आपको कहाँ से कहाँ करना है? From z is equals to 0 to z is equals to 4 plus 2i along the curve. अब यहीं से जो आपके पार्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे. अलॉन्ग द कर्व में पहला पार्ट क्या है? फ्रॉम z इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आई टी. ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली ये जो है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अब आपको क्या करना है? अभी तक क्या गिवन होता था? कर्व गिवन होते थे तो आप उनको ड्रॉ कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे. यहाँ पे भी करोगे. ठीक है. बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको याद रखो. इफ़ यू आर रिमेंबरिंग योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर श्योर. You remember that we always write a complex number in form of x plus iy. So if you are comparing it, you got x is equals to t square and you got y is equals to t. अब इन दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर x है. मतलब ये हमें कर्व दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में. उसका पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन था हमको. आपको याद भी होगा शायद क्लास 12th में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ाया गया होगा तो पैराबोला का ये बताया गया होगा. सो दिस इज आवर कर्व. ठीक. अब लिमिट्स का क्या करें? लिमिट्स भी बहुत आसानी तरीके से निकल आएंगी. देखो कैसे. यहाँ पे आपको बोला है z इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि आपका x भी 0 है और y भी 0 है. अब जब आप x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू टी में रखोगे तो इन दोनों से आपको t 0 मिल गया. तो देखो ये आपका जो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से आपको t 0 मिला. यहाँ पे आपका x 4 है एंड आपका y जो है वो 2 है. x की वैल्यू t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू t मतलब y इज इक्वल्स टू 2. अब इन दोनों से सॉल्व करोगे तो आपको t इज इक्वल्स टू 2 मिला कि नहीं मिला? तो हमें t की जो लिमिट है वो भी पता लग गई. और अब जाके सब कुछ रख देना है. यहाँ देखो एक और आसान सी चीज़, अगर आप dz निकालोगे तो वो क्या आएगा? 2t प्लस का i और dt. नाउ यू हैव एवरीथिंग टू कीप इट ओवर हियर. ठीक है. क्या है आपके पास? c टाइम्स z बार dz. तो आपको ये पता लग रहा है बहुत आसानी से क्या कि हमारे पास ये जो z बार है वो क्या आएगा? t स्क्वायर माइनस का it आएगा. ठीक है. तो उसको हम रख लेते हैं. तो दिस इज t स्क्वायर माइनस का it. ठीक. अभी देखो हमें यहाँ पे dz निकाला है 2t प्लस i. ठीक है. तो वो भी रख देते हैं 2t प्लस i एंड दिस इज dt. और हमने t की लिमिट निकाली थी फ्रॉम 0 से 2. सच अ सिंपल क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करना है. ठीक है. z आपको क्या दिया था? t स्क्वायर प्लस it. तो आपका जो z बार है वो भी आ जाएगा t स्क्वायर माइनस it. ठीक है. और dz आपने यहाँ से निकाल ही लिया है 2t प्लस i dt. t की लिमिट्स हमारे पास ऑलरेडी है ना. वी आर गोइंग टू जस्ट सब्स्टिट्यूट इट. तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा अंदर. यहाँ पे क्या बनेगा? 2t क्यूब प्लस का it स्क्वायर माइनस का 2it स्क्वायर एंड यहाँ पे देखो ये माइनस का i स्क्वायर t dt बन जाएगा. ठीक है. इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज 2t रेज टू द पावर 4/4 फ्रॉम 0 to 2. देन ये माइनस का i t स्क्वायर बचेगा तो दिस इज t क्यूब बाई 3 फ्रॉम t 0 to 2 एंड i स्क्वायर आपका क्या होता है? -1. तो ये प्लस का t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा फ्रॉम 0 to 2. अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 रखोगे तो यहाँ से 4 आएगा. ठीक. देन माइनस का 8i बाई 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा. तो 8 प्लस 2 इज 10 माइनस का 8i बाई 3. तो जो हमारे पास गिवन था z इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस IT कर्व के अलोंग z बार को हमें इंटीग्रेट करना था फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 to z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2i. दिस इज द आंसर दैट वी ऑल आर गेटिंग. ठीक है.
सो ये था हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट ए. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी एंड लेट्स सी व्हाट इज दैट. सो जो हमारे पास बी पार्ट है वो अगेन वी हैव टू जस्ट integrate this z bar over a curve C from where to where, from z is equals to 0 to z is equals to 4 plus 2i, z is equals to 0 to z is equals to 4 plus 2i along the b part क्या है, along the line from z is equals to 0 to z is equals to 2i and then along the line from z is equals to 2i to z is equals to 4 plus 2i, है ना. देखो बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है ना जो हमने अभी लास्ट वाले पार्ट में किया था, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके किसी एक पार्ट में हमने जो किया था बिल्कुल वैसे ही. ठीक है, लेट्स डू दिस. सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले दे हैव सेड कि हमारा जो कर्व है वो z इज इक्वल्स टू z इज 0 से z इज इक्वल्स टू 2i तक क्या होना है, इंटीग्रेट होना है. तो देखो ये मतलब z इज इक्वल्स टू 2i का मतलब क्या है, x प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे तो x 0 और y 2. तो ये है आपके पास पॉइंट z इज इक्वल्स टू 2i और ये है z इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब पहले इस वाले कर्व को उन्होंने इस वाले रास्ते पे चलना है, तो इसको हम I1 मान लेते हैं. देन वो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 2i तो z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2i. तो देखो y 2i से 2i ही रहा, मतलब अब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं और x जो है वो 4 हो गया क्योंकि z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2i की बात करनी है हमको. तो यानी कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2, तो ये रहा z इज इक्वल्स टू 4, राइट. तो ये हो गया हमारा I2 कर्व. तो अब जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, ये जो हमें सी जेड बार डी जेड निकालना है उसमें हम इसको I1 पे जेड बार डी जेड निकाल लें और I2 पे जेड बार डी जेड निकाल लें एंड वी आर डन. तो बस इतना सा ही हमको इवैल्यूएट करना है. लेट्स डू इट नाउ. अब I1 कर्व को हम देखते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. I1 कर्व को देखो आप, दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस. तो यहाँ पे x ऑलवेज 0 होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, यानी जो dx होगा वो 0 हो जाएगा. z हमारा x प्लस आई वाई था और z बार जो है वो हमारा क्या आएगा, x माइनस आई वाई. तो अगर आप ध्यान से देखो x हमारा 0 है तो z बार माइनस आई वाई आएगा केवल, और जब dz निकालोगे तो केवल वो i dy आएगा क्योंकि dx तो 0 है. अब ये I1 पे z बार dz निकालने जाओगे तो देखो y में पता लग रहा है ना, यहाँ y 0 है और यहाँ y 2 है, तो y जो है वो फ्रॉम 0 टू 2 जा रहा है. z बार की वैल्यू में जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो वो माइनस का आई वाई आया, dz हमारा i dy आया क्योंकि dx 0 हो गया. आई स्क्वायर -1 ऑलरेडी होता है, वो माइनस माइनस प्लस हो गया. y का आपने y स्क्वायर बाई 2 किया, 0 से 2 ये केवल आ गया 2. ठीक है, सो हमारे पास I1 कर्व पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है. ऐसे ही हम I2 कर्व पे जाएंगे. अब I2 कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू रियल एक्सिस, मतलब y की वैल्यू सेम रहेगी और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 2 है. इसका मतलब जो हमारा dy है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. z x प्लस आई वाई है तो x प्लस 2i हो जाएगा, y की वैल्यू 2 रख दी. z बार निकालोगे व्हाट इट विल बिकम, x माइनस का 2i आ जाएगा और dz निकालने जाओगे तो वो dx आएगा क्योंकि dy ऑलरेडी 0 हो गया है. सो इस I2 कर्व पे जब हम z बार dz निकालेंगे सो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 से एज वी कैन सी x इज इक्वल्स टू 4 तक जा रहा है. ठीक है, z बार की वैल्यू x माइनस का 2i आ गई है और dz की वैल्यू हमारे पास dx आ गई है, राइट. सो बस ये क्या बना, x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस का 2ix बन गया एंड फ्रॉम 0 टू 4 ये क्या बना, देखो 4 स्क्वायर बाई 2 यानी ये 8 बन जाएगा और यहाँ पे ये माइनस का 8i बन जाएगा. ठीक है, और लेकिन आंसर जो हमारा आना है वो सी जेड बार डी जेड आना है, मतलब कि I1 कर्व पे z बार dz और यहाँ पे I2 कर्व पे z बार dz आना है. ठीक है, तो I1 पे हमने 2 निकाला है और इस पे हमने आई थिंक कितना निकाला है, 8 माइनस 8i. ठीक है, 8 माइनस का 8i, तो ये क्या बन गया, 10 माइनस का 8i बन गया.
और अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था वो भी आई थिंक ऐसा ही कुछ आंसर आया था. होपफुली वी वुड हैव गॉट द सेम आंसर ओवर देयर, बट ठीक है. फॉर दिस बी पार्ट वी आर गेटिंग दिस आंसर. आई होप कि आप सबको ये समझ आया हो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं. अगेन द की पॉइंट इज दैट you should always try to get a relation in between the वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर आप उस कर्व की इक्वेशन निकालने की कोशिश करो एक्स वाई के टर्म्स में, या एक्स की इक्वेशन या एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई इज इक्वल्स टू बी बनाने की कोशिश करो. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल्स वेरी इजीली. बस आपको जाके सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. ऑलराइट, सो दिस वाज इट अबाउट इट. हमने 2 क्वेश्चंस किए. अगर आपको किसी और क्वेश्चन में जो आपके पास प्रॉब्लम है यू कैन डू लेट मी नो. एंड इसके बाद हम कॉशी प्रॉब्लम्स भी करेंगे. कॉशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला है, देन उसका डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उस पर भी वी विल ट्राई टू सॉल्व द फ्यू क्वेश्चन सो दैट बिफोर एग्जाम हमारा एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए. दिस इज आई एम ट्राइंग. सो अगेन, if you have forgotten, let me just tell you that we have a offer running for everyone, and this is valid till 30th of April. So all those students who want to prepare for IIT JAM 2024 or 2025, this is the best time and the best offer that you can avail, because हमारे पास कल से एक बैच कोर्स शुरू हो रहा है. मैं ही शुरुआत कर रही हूँ उसकी एक लीनियर अलजेब्रा कोर्स से at 9:30 PM. So this is the best way you can start preparing. So you can use my code ALKA99 and just come and see what is going to be covered in this LA course. So hope to see everyone tomorrow. That's it for this session. Thank you everyone.